My name is Harshdeep Singh. I am from Humanities stream, and I'm scoring 98.2%. I am the JNK state topper, and the journey here at Pillars has been a substantial one in my education. The teachers here are well experienced. They are quite content with the concepts, the CBSE concepts, and the way they teach is just beyond amazing. And they are all, and the test series that are conducted here have a very big role in my percentage, and I am just grateful that I took admission here and that I've scored such marks. What's your message to the youth? My only message is that practice makes a man perfect. Revise as much as you can and use your time as use your time as well as you can. That's all I would like to say. Hi, I am Pavni Nanda. I am from Humanities stream and I scored 93%. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? Pillar is a very great institute and has played a very important role in my achievement. The teachers here are very good, very experienced, and the test series that they conducted was very nice. They played a very good role in the marks I secured in my 12th grade. Special thanks to Raghunandan sir, my history teacher. He played a very great role in my achievement. तो क्या मैसेज रहेगा आपके लिए आपका youth? Please join Pillars because the notes which are given here are very good. I didn't study it from NCRT because the notes were so good. My name is Jaswin Singh. I have scored 90% in my class 12th, and I have commerce stream, and I have scored 95% in my accountancy. The teacher here at Pillars are very sportive, and they have provided a great role in my performance. And without the my accountancy sir Dr. Atul Hans, I was not able to score that much. And they have provided very good notes, and regular test series is very good, and the crash course in which they revise all the things are very important and informative for us. Overall, the Pillars Institute is very supportive. My name is Sarchit Ratra, and I have scored 94% in class 12, and I have opted for commerce stream. In accountancy, I have scored 100 on 100, and I would recommend everyone to join Pillars as the concepts teach here are absolutely incredible, and the test series here is also very good, and the teaching way of Dr. Atul Hansar is very good. So I would recommend everyone to join Pillars. My name is Abhiraj. I have done my tutoring from Pillars Institute of Commerce, and I have scored 92%, 92.25% in my class 12th examinations. And I would like to say that Pillars has contributed a lot in my performance. You get a lot of good test series, you get very good teachers, and you get to study with the best students in the Jammu state. And I would like to convey to all of you to keep revising, keep practicing, and not lose hope. And yes, another thing, even if you score low in some tests, do not get disappointed and keep working hard. And surely you would score really, really good marks in your class 12 examinations. इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट. सो ये आपका फर्स्ट स्टेज थी बच्चे लाइफ की जो आपने कवर अप कर ली, बट इसके आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. अब आप सब एक कैटेगरी में आ गए हो जिसको मेच्योर कैटेगरी कहते हैं. अब आपके साथ जो एक वर्ड था ना बच्चा, वो खत्म हो गया. अब आप सब बड़े हो चुके हो, मेच्योर हो चुके हो. ठीक. अब जो भी स्टेप आप लोगे, जो भी कोर्स आप लोगे, जो भी कॉलेज आप लोगे, जो भी यूनिवर्सिटी आप लोगे, एक चीज़ को ध्यान में रख के लेना. शॉर्ट टर्म विजुलाइज मत करना कि आपको डीयू जाना है, आपको सिम्बियोसिस पुणे जाना है, आपको मुंबई जाना है, आपको चंडीगढ़ जाना है. आपका बेसिकली टारगेट क्या है? आई एम डॉक्टर अतुल सर. तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा चल रहा है बच्चों का इससे? देखिए ऐसा है कि जो ये इंस्टीट्यूट है द पिलर्स, ये काफ़ी देर से हमारे स्टेट के बच्चों को जो है कैटर कर रहा है एजुकेशन में. बच्चों की मेहनत है, बच्चों के रिजल्ट्स हैं, बट डेफिनेटली हम सब लोग मिलके इसको सेलिब्रेट करते हैं. तो फिर बच्चों ने इस बार हमें मौका दिया है इसको सेलिब्रेट करने का, और पिछले तकरीबन 12 से 15 साल से बच्चे हमें मौका दे रहे हैं इसको एक लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट करने का. उसका रीज़न ये है कि जो रिज़ल्ट बच्चों का आता है, डेफिनेटली दौड़ते सारे हैं, एक लाइन को क्रॉस सारे करते हैं, बट कुछ उसमें से फर्स्ट, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड रहते हैं. ठीक है. बट ये जो पिलर्स इंस्टीट्यूट है जो जाना जाता है ह्यूमैनिटीज़ के लिए, हमारे कॉमर्स के लिए, इसमें पिछले 10-12 साल से हम इस स्टेट के टॉपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. हम डिफरेंट स्कूल्स के टॉपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. बट हमारा मकसद टॉपर्स प्रोड्यूस करना नहीं है. हमारा मकसद है बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना. हमारा मकसद है बच्चों को लाइफ के लिए एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसी आजकल 21st सेंचुरी स्किल्स की नीड है बच्चों को.
एक छोटा सा मैसेज ये क्या रहेगा कि जब भी स्टूडेंट्स को एक इंस्टीट्यूशन की सिलेक्शन करनी है तो ये काफ़ी क्योस रहता है, तो कैसे उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की बहुत मशरूम ग्रोथ हो चुकी है हमारे सोसाइटी में। बच्चों को नहीं समझ आता कि बेस्ट कौन सा है, ठीक है? सो बच्चों के लिए बेस्ट यही होगा कि जब भी किसी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करते हैं, सबसे पहले इनका राइट है वहाँ जाके एटलीस्ट 2-3 डेमो क्लासेस लें। डेमो क्लासेस लेके एटलीस्ट अपने करियर के बारे में डिस्कशन करें। जैसे मैं एक कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ, तो बच्चा मेरे से पूछे भाई मैं कॉमर्स में कर क्या सकता हूँ? क्या रीज़न है कि मैं कॉमर्स लूँ? क्या मैं आगे सेटल हो पाऊँगा या नहीं? ऐसे जो बाकी भी हमारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इस फील्ड में काफ़ी बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय लें। पहले अपना एक करियर पाथ सेट करें। करियर पाथ सेट करने के बाद 11th-12th की स्टडीज़ को स्टार्ट करें, सो दैट बात 11th-12th की नहीं है, बात करियर की है। तो हम जनरली क्या देखते हैं, 11th का हमारा स्टेटस क्या है या 11th का टारगेट क्या है, 12th का टारगेट क्या है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये करियर से स्टार्ट होना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। उसको करने के लिए, उस जॉब को लेने के लिए या बिज़नेस ओपन करने के लिए मुझे कौन सी डिग्री किस यूनिवर्सिटी से चाहिए। उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मुझे कौन सा बेस्ट कॉलेज चाहिए। उस बेस्ट कॉलेज के लिए मुझे 12th में क्या करना पड़ेगा, कितने परसेंट लेने पड़ेंगे, कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे और उसके लिए मुझे 11th में तैयारी किस तरीके से करनी है। सो दिस शुड बी द पाथ टू बी सेट बिफोर going to any of the institution or before choosing any of the stream for their career. एक छोटा सा मैसेज क्या रहेगा? मैसेज यही है बच्चों के लिए कि आज की डेट में कंपटीशन बहुत हाई है। अभी तक हमारे बच्चे सिर्फ फोकस करते थे एक ही कोर्सेज़ को, जिनको हम जनरल कोर्सेज़ कहते हैं। बट अब जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है, इस NEP पॉलिसी ने बच्चों को 3 कोर्सेज़ प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें पहला कोर्स जनरल कोर्स है, जिसमें बैचलर कोर्सेज़ आते हैं जो बच्चे 12th के बाद करेंगे। दूसरे वोकेशनल कोर्सेज़ हैं। वोकेशनल कोर्सेज़ हर स्ट्रीम, हर सब्जेक्ट के साथ हैं, जिनका ड्यूरेशन 6 महीने से लेके 2 साल, 3 साल, 4 साल है। और तीसरे स्किल कोर्सेज़ हैं, जो एक नई चीज़ है बच्चों के लिए, जो 2 महीने से स्टार्ट होते हैं और आगे 2-3 साल तक जाते हैं, जिसमें बच्चों को किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना। ऑलरेडी ऑनलाइन ऐप्स हैं गवर्नमेंट की, उसके अंदर मॉड्यूल्स हैं, बच्चे उसी में पढ़ेंगे और पढ़ के अपने टेस्ट सेल्फ उसी में देंगे और उनके सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएंगे। दे विल बी एजुकेटेड इन देयर पर्टिकुलर फील्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मेरे कॉमर्स के बच्चे, अब कॉमर्स के बच्चे या तो बीकॉम के लिए जाएंगे या बीकॉम ऑनर्स के लिए, या फिर ये बच्चे जाएंगे BBA वगैरह के लिए। बट इसके साथ कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका बेंड ऑफ माइंड स्टॉक एक्सचेंज की तरफ होगा, जिनका बेंड ऑफ माइंड टैक्सेशन की तरफ होगा, GST की तरफ होगा। तो ये सारे स्किल कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो बच्चे अपने लेजर टाइम में, फ्री टाइम में इजीली करके अपने आप को फुल इक्विप कर सकते हैं, ताकि आगे इनके पास सिर्फ जॉब प्रॉस्पेक्ट ना हो, करियर प्रॉस्पेक्ट हो, ताकि ये डिफरेंट करियर्स में स्विच कर सकें। थैंक यू।